मैंने 11 बोला था, देख 12 चल रहा है, बस बेटिंग खत्म, आज ही पैसा चाहिए मेरे को तो. So the money will be paid to you here. The difference of this period will be paid to you here. But what should be paid actually is the present value of the money. Taking time value into consideration. We would very rarely take practically in the time value into consideration because market में भी कोई सोचता नहीं है. But logic तो बनता है कि पैसा 9 months के बाद ड्यू था और अगर हमको 6 months में मिल रहा है तो हमें क्या लेना चाहिए? Present value. Are we clear? Taking it ahead. The winner of the bet will get from the loser the PV of the difference on the maturity of the FRA. When does the maturity of FRA lies? It's the start, not the end. It's not at the end month is known as the maturity. The FRA ends on which date? 6. The start. If I tell you FRA 7 by 11, when is the maturity? 7. If I tell you FRA 3 by 6? Simple. Are we clear? Question number 1, practical questions पे. Have a look at that. एकदम आराम से. RM buys 500 crore 6 by 9 FRA at 10 by 11%. The rate turns out to be what? 12.5%. Calculate the amount of payoff. एकदम आराम से सोच के बोलो. FRA, question number 1. RM buys what? 500 crore of 6 by 9 FRA. What was the FRA quoted at? 10 and 11? 10 and 11. I'm buying or I'm selling? RM buys. At what? 11? Are we buying at 11 then? Okay, continuation. Calculate the rate turns out to be what? Tell me now. The rate turns out to be 12.5%. Who wins? RM wins. पहला मेंटालिटी तो इधर ही अपना. मैं तुमको बोला ना ये प्योर पूरा चैप्टर हम सिर्फ बैटिंग ही करने वाले, कैलकुलेशन बाद में करते रहेंगे, पहले तो यही सोचना है जीता कौन और हारा कौन. कौन जीता? RM wins. He bought at 11, he is selling at what? 12.5. So he wins. कितना परसेंट? See the calculation that I am doing. 500 crore ना into 12.5 minus 11. 1.5% जीते. कितने मंथ्स के लिए जीते? इंटू 3 by 12. Yes or no? पक्का? Next one. Divided by what? Calculation. Present value की काम करनी है तुम्हें. Present value आना चाहिए ना. पहले कैलकुलेशन देखो फिर लिखो. आराम से सोच रहा हूं मैं. ये पैसा ड्यू कब है? After 9 months. Yes or no? कितना प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है उसको? 9 months पे ड्यू है. हमें कब पैसा मिलने वाला है? What is the actual rate going on? 12.5 into 3 by 12. Take it slow and steady. What am I saying? You need to understand that. We need to put a diagram and we will understand it clearly. Is it 6 months here? Is it 9 months here? हम कितने डीलिंग कर रहे थे? 500 करोड़ की. हमने खरीदा कितने पे था? एक्चुअल रेट क्या है तुम्हारा? तो मेरे को ये 3 महीने का पैसा मिलना चाहिए. वो तो एकदम सिंपल है ना. बट वेयर इज दिस मनी स्टैंडिंग? वेयर इज दिस मनी स्टैंडिंग? This money is standing here. This money is not standing here. Yes or no? और practically चलो वो मोड पे चले जाते जहां पे मैंने बोला थोड़ा स्ट्रेस करेंगे. Are you promising to borrow? Are you promising to invest? Borrow at what rate? तो actual तुम इधर तो borrow करोगे.
तुम यहां पे तो एक्चुअल बोरो करोगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कितने महीने के लिए बोरो करेंगे? अपने को कितने महीने का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा? 3 महीने का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। एट कौन सा रेट? 11% का। ये 3 महीने का इंटरेस्ट भरोगे कब? आज भरोगे कि 9 महीने के बाद भरोगे? एट द एंड ऑफ 9th मंथ भरोगे। अच्छा, मार्केट में एक्चुअल कितना चल रहा था? तो तुमने 1.5% बचाया, तो वो कैलकुलेशन तो इधर हुई ना कि बोरो किया तो 9 महीने का इंटरेस्ट कितना भरा? 11% पे। कितना भरने वाले थे? 12.5% पे। सेविंग कितनी हुई? पर ये सब कैलकुलेशन कहां चल रही है? 9 मंथ्स के एंड पे। पर जैसे मैंने बोला, बैटिंग तो आज ही खत्म हो गई, तो वो पैसा कब चाहिए मुझे? आज। अच्छा, अब तुम ये बोलो आज उसको कितने महीने से खींचना है हमें पीछे? 3 मंथ से खींचना है। व्हाट इज द रेट ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट गोइंग ऑन? 12.5। वहां पे एक्चुअल रेट लगेगा, वहां पे हमारा कॉन्ट्रैक्टेड रेट नहीं लगेगा। कॉन्सेप्ट समझा? चलो फ्रेमिंग करो, जैसे लिखा रहा हूं वैसे लिखोगे आप। राइट द आंसर देयर, फिर हम कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट वन, RM buys 6/9 FRA. RM buys 6/9 FRA quoted at what? 10/11%. Next line, therefore buying rate will be 11%. Next line, actual rate 12.5%. Therefore, the amount of payoff is equal to 12 माइनस लिखना मत आप, 12.5 माइनस 11 कितना होता है? 1.5। कितने महीने के लिए? और डायरेक्टली इंटरेस्ट ऐड करना है हम लोग को 500 पे इन 1.00375। क्यों 875? फाइनल आंसर बोल रहे हो, मैं लिखा रहा हूं वैसे ही लिखेंगे आप। अमाउंट ऑफ पे ऑफ इज इक्वल टू 500 इंटू 1.00375 ब्रैकेट में लिखो अभी 12.5 माइनस 11 इंटू 3/12। क्यों लिख रहे हो? मैं जो नहीं बोल रहा हूँ वो ठीक है। 500 इंटू क्या बोला मैंने अभी आपको? करेक्ट है ना? तो मैं कैलकुलेशन सोच रहा हूं अभी भी। लिख दो, फिर कैलकुलेशन करके आंसर निकालेंगे हम लोग। डिवाइडेड बाय 12.5 डिवाइडेड बाय व्हाट? 4। नहीं, उधर तो हम लोग को 150 ही मिलेगा। ऊपर का पूरा आंसर चेंज कैंसिल कर दो, ऊपर का न्यूमरेटर 500 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 3/12। 500 इंटू 0.375। पेमेंट विल बी ओनली ऑन द डिफरेंशियल। मैं अमाउंट कैलकुलेशन कर रहा था। 500 इंटू 0.375। अब ब्रैकेट में लिखो 12.5 माइनस 11 इंटू 3/12 ब्रैकेट क्लोजेस डिवाइडेड बाय 1.00375
03215 03125 1.03125। अभी आराम से समझो कैसे किया है ये मैंने। फर्स्ट वन, द न्यूमरेटर आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। इज इट 500 द अमाउंट? और पेमेंट किसका होगा? खाली डिफरेंशियल का। मैं वो 1 लिख रहा था इसीलिए बिकॉज आई वाज थिंकिंग वो अमाउंट आ रहा है, पर एक्चुअली हमारा बाइंग सेलिंग होगा नहीं, तो कहां से हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे? 500 पे। 500 पे क्या मिलेगा हम लोग को? इंटरेस्ट कितना हुआ? 0.375। वो 0.375 कैसे निकाला? 12.5 माइनस 11 इंटू 3/12 डिवाइडेड बाय 1.03125। ये कैसे निकाला? 12.5 डिवाइडेड बाय व्हाट? 4। Do you agree with that one? And it is a pullback. So plus the 1. Are we clear with that? Get the answer now. Tell me what is the answer that you are getting now. 181 नहीं आएगा, अभी हमने सिर्फ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की है। 181 180 181.82. Is it such a huge amount of interest? I didn't get you. Percentage, yeah. So it will be 1.8. That's what I'm saying. Such a huge amount. 0.375 would be percentage. 1.8182. And what is the amount? Is it in crores? %1.5 per annum. So 3 months का percentage हुआ ना ये. So 0.375%. I guess आप percentage लिखना भूल गए वहाँ पे, या मैं बोलना भूल गया. Are we getting 1.8182 crores? Who will pay to whom? Next line पे. Who will pay to whom? RM will pay? Who has won? RM has won. So who will pay to whom? Bank will pay to RM. So next line पे लिखेंगे bank will pay to RM. Bank will pay to RM. Yes. 12.5 divided by 4. So 12.5 divided by 4 is how much? Why 12.5 divided by 4? Is it basically 3 months? So I'm not looking at 12.5 divided by 4 also. You can say 12.5 into 3/12. That is. We are taking the differential thing. So why are we adding a 1 again? Because we had a 1. We are taking a discounting value. हम उसको डिस्काउंट करा रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं. अब आपको प्रेजेंट वैल्यू ये तो पता है. देखो हम ये करते थे कि एट द एंड ऑफ द ईयर पे आएंगे तो हम उसका डिस्काउंटिंग कैसे करेंगे. सो अगर 10% डिस्काउंट वैल्यू है तो आप क्या करोगे? उसको डिवाइड बाय 1.1. 10% डिस्काउंटिंग वैल्यू है तो डिवाइड बाय 1.1. पर हम उसको डिस्काउंट किससे करा रहे हैं? खाली 3 मंथ्स के इंटरेस्ट रेट से. अभी एग्जैक्टली क्लियर है. डिस्काउंटिंग रेट कैसे निकालते हैं? या तो आप उसको डिवाइड कर दो 1.1 से, या तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई करो जो फैक्टर आ रहा है उससे. तो अभी फैक्टर निकालने का हमारे पास वो 3 महीने का तो चांस नहीं है, तो हम उसको डिवाइड कर रहे हैं सीधा. पर डिवाइड कितने महीने के फैक्टर से किया हम लोग ने? खाली 3 मंथ्स. तो पहले 3 महीने का इंटरेस्ट निकाला, उसका फैक्टर बना दिया और उसको डिवाइड कर दिया उससे. अभी क्लियर विद दिस वन? फैक्टोरियल निकालना 1 ईयर पे बहुत प्रेफरेबल होता है, बट अगर हम लोग 6 मंथ्स या 5 मंथ्स पे जा रहे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी. Are we clear with that one? 10% डिस्काउंटिंग रेट का फैक्टर निकालना बहुत सिंपल है. या तो उस अमाउंट को मतलब 1.1 डिवाइड करके उसका फैक्टर बोल दो. सो 0.909 उसका फैक्टर आया हमारे पास. सो दैट इज एज सिंपल. देन यू विल से 500 मल्टीप्लाइड बाय 0.909. तो पहले तो हम लोग ने उसका इंटरेस्ट निकाला. सी द कैलकुलेशन दैट आई एम पुटिंग ऑन. 500 इंटू 0.375% करो. और चाहिए तो फर्स्ट क्वेश्चन में डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दे दो. व्हाट इज 500 इंटू 0.375%? 1.875 crore. This amount of interest is standing at which date? 9th month. समझा ना? अभी हम लोग ने खाली ये 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया. कौन से अमाउंट पे? 500 पे.
अच्छा, पर ये जो अमाउंट खड़ा है वो 9th मंथ पे खड़ा है, मुझे उसे पुल बैक करके कहां पे लेके आना है? 6th मंथ पे। मतलब मुझे उसको कितने महीने से पुल बैक करना है? नाउ इफ आई से द रेट इज 10%, तो पूरे ईयर का फैक्टर क्या था? 1.1। पर अगर मैं बोलूं 3 मंथ्स का फैक्टर है तो क्या हो जाएगा वो? दैट 10% इन्फ्लेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 3/4। व्हाट इज 10% इनटू 3/4? इज इट 2.5? तो अगर एक साल की डिस्काउंटिंग करनी है तो आप 1.1 बोलते हो, मुझे 3 महीने की डिस्काउंटिंग करनी है, सो ये जो 0.1 है, कहना इसे ये 0.1 डिवाइड बाय 4 दिखेगा हमें, तो आप डिस्काउंटिंग किससे करोगे? 1.025 से। कॉन्सेप्ट समझा? तो मैंने यहां पे कैलकुलेशन में क्या किया, इसको कितने महीने से पुल बैक किया है? 3 मंथ्स। अच्छा, एक्चुअल रेट कितना था पूरे साल का? 12.5। 12.5, तो यहां पे एक्चुअली क्या है? 1.125। बट ये 1.125 को हम लोग ने क्या कर दिया? So now this money is pulled back 1.1875 divided by 1.03125. It is pulled back by how many months? 3 months. So what is the money that I should receive today is 1.8182 crore. Who should receive? RM should receive from whom? Bank. So transaction is not taking place at the end of 9th month. The transaction is taking place at the end of 6th month. But कौन से वैल्यू पे? प्रेजेंट। अभी बैंक एकदम सिंपल बोल सकता है ना, बेटा तेरे को पैसा चाहिए तो 9 मंथ्स के बाद लेके जा, पर बेटिंग तो आज खत्म हो गई, तो मेरे को पैसा आज चाहिए, पर वो आज मेरे को 1.875 क्यों दे? अभी क्लियर? अभी 90% टेक्स्ट बुक्स ना सीधा 1.875 का आंसर लेके आते हैं, और 1.875 राइट भी है कि मैं 1.5% जीता हूं 500 करोड़ पे, तो 500 करोड़ पे 1.5% फॉर अ ईयर, बट तो 3 महीने का अमाउंट कितना हुआ? 1.875 करोड़। सो दैट अमाउंट इज करेक्ट, बट नाउ वी स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली। वो 3 महीने का इंटरेस्ट था, अक्रू एट द एंड ऑफ 3rd मंथ होगा, पर बेटिंग अगर आज खत्म हो गई तो ये पैसा मुझे कौन देगा? बैंक। आज तो बैंक क्या बोलेगा? अगर 3 महीने पहले दे रहा हूं तो इंटरेस्ट काटूंगा ना? यस और नो? वो इंटरेस्ट के अमाउंट पे वो 3 महीने का डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा रहा है। सिंपल है। ये भी हम लोग ने कहां सीखा है मालूम है? मनी मार्केट ऑपरेशंस। फिर से एक बार वही सोच लो कि 3 महीने के बाद मेरे को इतना चाहिए था, तो आज कितना होगा? तो आज उसको उसके फैक्टर से डिवाइड कर दिया मैंने। सिंपल। सेकेंड, और फर्स्ट टाइम कर रहे तो थोड़ा दिमाग चलता है। व्हाट इज सेकेंड नाउ? क्वेश्चन नंबर 2, RM buys what? 500 crore, 6/9 FRA at what rate? 10/11. The rate of return turns out to be what percentage? 10%. Now you tell me, you are going to work out with me. आप लिखना चालू नहीं करेंगे जब तक हमें आंसर नहीं मिल जाए। RM buys at what? 11. Actual is what? Okay, work out with me. बोलो। 500 करोड़। आप जीते, आप हारे? हम लोग हार गए। कितना परसेंट हारे हम? हमने बाय कितने पे किया था? इंटू 11 माइनस 10 इंटू 3/12। यस और नो? अच्छा, अभी ये मत भूलना, फिर से एक बार सेम कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं। ये अमाउंट बोलोगे ना तो ब्लैंक इंटरेस्ट अमाउंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा तुमको? ब्लैंक इंटरेस्ट अमाउंट। पर ये इंटरेस्ट अमाउंट खड़ा कहां पे है? 9 मंथ्स पे। मेरे को उसको कहां पे पुल बैक करना है? कौन से रेट पे? 10। इधर 12.5 नहीं, इधर एक्चुअल रेट चलेगा। 10 पर एनम फॉर 3 मंथ्स। फॉर 3 मंथ्स 2.5। फैक्टर क्या बनेगा उसका? 1.0025। 0025 क्यों? 1.025। 0 नहीं, 0। और मैं वही बोल रहा हूं, देखो अभी कभी भी फंसो ना तो भी तुम यही सोचो कितना 10% से डिस्काउंट कराना, तो एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर तो 1.1 हुआ। अपने को कितने महीने से पुल बैक कराना है उसको? तो कहना है ये जो 0.1 दिख रहा है ना तुम्हें, इसको तुम किससे डिवाइड करोगे? 3/12। जब समझा? टेल मी द आंसर। व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग?
1.219 crore. अच्छा, but who will pay to whom? RM will pay to whom? Bank. Are we clear with this one? Write it and write that RM will pay to bank. Question number 3. One last question. Question number 3. First, an FRA 5/12. Abhi, your understandings for the day. First one. What do you mean by FRA 5/12? After 5 months for 7 months. Continuation of that is presently quoted at how much? 13 and 14. What is 13 and 14? Bid and ask. From whom? अपने लिए buy or sell. Buying means a promise to borrow and sell means a promise to invest. Are we clear with that one? Transaction matures or ends on 12th month, but the payment or the payoff will be done at the end of 5th month. Clear hai? Continuation. A trader sells FRA on a notional principal of 6 crore. Buys FRA, sells FRA. Sells FRA at what rate? 13%, that means sells FRA at 13. What is the notional principal they are giving you? 6 crore. Continuation. What would be the payoff if after 5 months the 7-month LIBOR happens to be with what percentage? 6%. Actual 6%. You win, you lose. We win, we lose. We win. Sell किया था. Sell is a downward belief. Sell is a downward belief and downward belief came true. I win. Payoff at the end of what? Payoff at the end of 5th month. उसके पहले तो payoff हो ही नहीं सकता है. लोगों को लगता है FRA 5/7 बोला ना तो बेटिंग चल रही, वो 5/12 बोला ना यहाँ पे तो बेटिंग चलेगी वो 7 महीने में. एक्चुअली बेटिंग वो 7 महीने में नहीं चल रही, बेटिंग पहले 5 महीने में चल रही है. अब एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन. बाद में तो बेटिंग खत्म हो गई 5 महीने के एंड पे तो. अच्छा, पे ऑफ क्या होगा? पे ऑफ आप मुझे अमाउंट बताइए. अभी आप ही बोलेंगे सारे वर्ड्स. 6 करोड़ इंटू 13 माइनस 6 इंटू 7/12 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 7/12 उसका फैक्टर 1. Are we clear with that one? Please get me the answer. Rupee 23 lakh 67,000 1
50. Who pays to whom? Bank pays to trader. ए लिखा है. कॉन्सेप्ट समझा एफआरए का? पक्का? प्लीज. काफी आज के लिए. नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हम एफआरए पे. थैंक यू.